میرے پیارے حضرت فاطمہ الزہرا نے آقا کریم سے اپنا مہر کیا طلب کیا کہ آقا قیامت کا جب دن آئے تو میرے پیارے قیامت کا جب دن آئے گا یہ زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی, آسمان کا سورج سوا نیزے پر آ جائے گا, ہر ایک انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی, اللہ قہر و غضب میں ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی, وہ ماں جو اپنے بیٹے کو دھوپ میں کھڑا ہونا برداشت نہ کرتی تھی لیکن آج بیٹے سے کہے گی بیٹے آج تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے, باپ کہے گا بیٹے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے, بھائی بھائی سے بھاگے گا, ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا, اللہ قہر و غضب میں ہوگا. بعض لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوب کر مر رہے ہوں گے, بعض بڑے بڑے متقی پرہیزگاروں کو اپنا تک ہوش نہ ہوگا, ہر ایک یہ خیال کر رہا ہوگا میرا حساب پہلے ہو جائے, میرا حساب پہلے ہو جائے. لیکن میرے پیارے دیکھو تو نبی کی نور نظر کو تو دیکھو, آقا کی لخت جگر کو تو دیکھو, فاطمہ الزہرا کو تو دیکھو. شادی کا موقع خوشی کا ہوتا ہے, شادی کا موقع خوشی کا ہوتا ہے, ہر ایک آدمی اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے, کیا کرنا ہے. لیکن نبی کی لخت جگر نے اگر سوچا ہے, اگر خیال کیا ہے تو آقا کی امت کا کیا ہے, اپنے ابا کی امت کا کیا ہے, حضور کی امت کا کیا ہے. میرے پیارے یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں, میرے پیارے انہوں نے اپنے بارے میں نہیں سوچا ہے. میرے پیارے جب قیامت کا دن آئے گا تو حضرت فاطمہ الزہرا میرے پیارے اپنا مہر کیا طلب کریں گی کہ میرے آقا کی امت کو بخش دیا جائے, میرے آقا کی امت کی شفاعت کرائی جائے. میرے پیارے یہی تو حضرت فاطمہ الزہرا ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھو, اس لیے کہ فاطمہ اور فاطمہ کے چاہنے والوں کو, فاطمہ اور ان سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے آزاد فرما دیا گیا ہے. اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ فاطمہ کی اولاد کو قیامت تک کے لیے جہنم سے آزاد فرما دیا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے, میرے بدن کا ٹکڑا ہے. کیوں بدن کا ٹکڑا فرمایا؟ ذرا یہاں پر ایک بات سنیں گے آپ ٹھہر کر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بظاہر اس دنیا سے تشریف لے کر گئے اور آپ اپنی قبر انور میں آرام فرما ہوئے تو وہ مٹی جو آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت کے جسم اطہر سے لگی, اس مٹی کا مقام اتنا ہے کہ کعبے سے بھی زیادہ اس کا مرتبہ ہے اور جنت سے بھی زیادہ اس کا مقام ہے. غرض کے عرش اعظم سے بھی زیادہ اس مٹی کا مقام ہے جو آقا کریم کے جسم سے مس ہوئی لگی. اب آپ ذرا ذہن حاضر کریں, کعبہ اللہ کا گھر ہے, تمام مسلمان جو بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب کے سب کعبے کی طرف کو نماز کر کے منہ پڑھتے ہیں. کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور یہ کہے کہ میں کعبے کی طرف کو منہ کر کے نماز نہیں پڑھتا تو وہ مسلمان بھی نہیں اور اس کی نماز بھی قبول نہیں. تو کعبے کا مقام پتہ چلا, جنت سب کے لیے ضروری ہے. لیکن دیکھیں کہ وہ مٹی جو آقا کریم کے جسم سے لگی اس کا مقام اس کعبے سے بھی زیادہ, جس کی طرف کو ہم منہ کر کے پڑھیں
जन्नत जिसकी ख्वाहिश सब रखें, लेकिन उस मिट्टी का मकाम जो आका के जिस्म से लगी, उस मिट्टी का मकाम ज्यादा। अब जरा देखें कि वो मिट्टी कि जो आका के जिस्म से लगी तो उसका इतना मकाम कि जन्नत भी उसके मुकाबले में नहीं, काबे की मिट्टी, काबे की ईंटें भी उसके मुकाबले में नहीं, कि जो मिट्टी आका के जिस्म से लगी। अब जरा देखें मिट्टी का ये मकाम कि जो आका के जिस्म से लग जाए तो वो मिट्टी काबे से अफजल, वो मिट्टी जन्नत से अफजल, वो मिट्टी अर्श आज़म से अफजल। और जिसे अपने बदन का टुकड़ा कहा हो, फिर उसकी अजमतों का क्या ठिकाना होगा, उसके मर्तबे का क्या ठिकाना होगा। मेरे प्यारे तवज्जो करें, हजरत फातिमा ज़हरा का मकाम जरा सुने। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा ज़हरा को, जब आप हुजूर के विसाल का वक्त करीब आया तो आपने बुला लिया और बुलाकर कुछ कान में राजो नियाज की बातें की। और जब बातें की तो मेरे प्यारे हजरत फातिमा ज़हरा रोने लगी, और जब रोने लगी तो फिर कुछ देर के बाद हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। सुभान अल्लाह कहिए। आप जब वहां से हट गई तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, प्यारे नबी की प्यारी बीबी, बयान करती हैं कि मैंने पूछा कि फातिमा रोने क्यों लगी और फिर कुछ देर के बाद मुस्कुराने क्यों लगी, हंसने क्यों लगी। कहने लगी रोने की बात तो यह थी कि आका करीम ने फरमाया, बेटी मैं अब इस दुनिया से बज़ाहिर रुखसत होने वाला हूं। हजरत फातिमा को अपने वालिद मोहतरम मुस्तफा जाने रहमत से बड़ी मोहब्बत थी। हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं, जब मैंने आका के विसाल की खबर सुनी मेरे दिल को बर्दाश्त न हो सका, मैं रोने लगी। और कुछ देर के बाद आका ने फरमाया, बेटी फातिमा तू जन्नत की तमाम औरतों की सरदार है। और एक रिवायत के अंदर आता है कि कायनात की सारी औरतों की सरदार। हजरत फातिमा कहती हैं, आका हजरत आसिया का क्या होगा और हजरत मरियम का क्या मकाम है। आका करीम ने फरमाया, और मुहद्दिसीन बयान करते हैं और उलमा बयान करते हैं कि वो हजरत हव्वा हो या हजरत फातिमा, हजरत आसिया हो या हजरत मरियम हो, ये जो है अपने अपने जमाने की औरतों की सरदार थीं। लेकिन हजरत फातिमा को अल्लाह ने वो मकाम दिया था, वो मर्तबा दिया था कि हजरत फातिमा अपने जमाने की भी तमाम औरतों की सरदार हैं और जन्नत की भी तमाम औरतों की सरदार हैं। इसलिए कि फातिमा का मकाम तो देखो मेरे प्यारे, फातिमा की माँ देखो कौन है, हजरत खदीजतुल कुबरा है। जरा फातिमा की माँ के जैसी किसी की माँ तो लाकर दिखाओ। हजरत फातिमा के बाप तो देखो तमाम नबियों के सरदार हैं, नबीउल अंबिया है, सैयदुल मुरसलीन है, अल्लाह के महबूब है, मुस्तफा जाने रहमत है, गरीबों के हामी है, कमजोरों के मददगार है, यतीमों के वाली है, बेवाओं की हमदर्दी करने वाले हैं। जरा फातिमा के जैसा बाप तो लाकर दिखाओ, जरा फातिमा के जैसा शोहर तो देखो, अली जैसा शेर तो लाकर दिखाओ, अली जैसा बहादुर तो लाकर दिखाओ, दरवाजे पैगंबर जैसा तो लाकर दिखाओ। मेरे प्यारे फातिमा जैसे बेटे तो लाकर दिखाओ, हुसैन तो लाकर दिखाओ, हसन तो लाकर दिखाओ। सारी कायनात के अगर माओ को एक पल्ले में रख दो और फातिमा की माँ के एक पैर को अगर एक पल्ले में रख दो तो सारी दुनिया की माएं एक पैर के मिस्र भी नहीं हो सकती हैं। और मेरे प्यारे फातिमा के बाप को अगर मुकाबला करा जाए पूरी दुनिया में कोई भी, न जिन न इंसान न कोई फरिश्ता, कोई भी मेरे आका के मुकाबले में नहीं है। बल्कि आका
आका आम इंसान तो आम है, तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम रसूलों के सरदार हैं, अल्लाह के महबूब है। फातिमा के शोहर जैसा लाकर दिखाओ, किसी का शोहर नहीं हो सकता है। फातिमा के लालो जैसा तो दिखाओ, हुसैन जैसा तो दिखाओ, हसन जैसा तो दिखाओ। अरे हुसैन की कुर्बानी को तो याद करो, हुसैन के सब्र को तो याद करो। मेरे प्यारे, हुसैन की कुर्बानी को एक पल्ले में रख दिया जाए, कायनात के तमाम बहादुरों की बहादुरी को अगर एक पल्ले में रख दिया जाए, कसम खुदा की हुसैन ने वो कुर्बानी करबला के मैदान में पेश की है। मेरे प्यारे, हुसैन ने करबला की तपती हुई जमीन पर ऐलान किया था, ऐ यजीदियों, देखो तुम कुरान के खिलाफ बोल रहे हो, देखो तुम शरीयत के खिलाफ बोल रहे हो, देखो तुम कुरान के खिलाफ कानून बनाना चाहते हो, देखो तुम शरीयत के खिलाफ कानून बनाना चाहते हो। हुसैन बोले हैं कि देखो यजीदियों, कुरान के खिलाफ कानून नहीं बनाया जा सकता, शरीयत के खिलाफ कानून नहीं बनाया जा सकता। हुसैन हुसैन करबला की तपती हुई जमीन पर इस्लाम और शरीयत के झंडे को उठाते हैं और तमाम यजीदियों को ललकारते हैं और कहते हैं पहचानो पहचानो, हुसैन मोहम्मद अरबी का नवासा है, अली का लाडला है, फातिमा का लख्ते जिगर है। पूरी कायनात बदल सकती है। हुसैन घर को कटा सकता है, सर को लुटा सकता है, घराने को लुटा सकता है, जान दे सकता है, जवान बेटों को दे सकता है, लेकिन परचम इस्लाम को न झुकने देगा। तभी तो किसी ने ऐलान किया है, कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है। कर इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। मेरे प्यारे तवज्जो करो, हजरत फातिमा ज़हरा की शान देखो। हजरत फातिमा ज़हरा अभी तो मेरे प्यारे बचपन का ही आलम है, बचपन का आलम है। हजरत फातिमा ज़हरा बचपन का आलम है, आपका बचपन है। कहती है तकरीबन अभी बहुत छोटी उम्र थी। एक दिन हजरत खदीजा ने गोद में लिया और फिर कहा आका आप गोदी में लीजिए। कायनात रश करती होगी जब नबी आखिरुज़्ज़मा की गोद में हजरत फातिमा खेलती होंगी। हजरत खदीजा प्यार में कहती हैं आका एक बात अर्ज करूं। आका फरमाते हैं बताओ क्या बात कहना चाहती है। कहा आका मैं अपनी बेटी को कुछ सोने के जेवरात पहनाना चाहती हूं। आका करीम ने जवाब दिया पहना दो अगर तुम्हारी मोहब्बत कहती है। हजरत फातिमा को पहनाए और हजरत फातिमा नन्हे नन्हे कदमों से घर में चली फिरी। ऐसा लगता था जैसे कोई तितली उड़ी फिर रही है, कोई तितली उड़ी फिर रही है। हजरत फातिमा किसी तरीके से दरवाजे से बाहर निकल गई और जब वापस आई तो आपके पास हार नहीं। जिसे हम देखते हैं बच्चे के हाथ में कोई चीज होती है, अचानक में बच्चा कहीं डाल दे तो कहते हैं अरे वो कहां चला गया। आज के जमाने में मोबाइल है, बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं गिर रहा। पहले लोग कहते थे कि शराब हर गुनाह की जड़ है, लेकिन अब ये निजामुद्दीन नईमी रामपुरी ये कहता है कि अब हर गुनाह की जड़ मोबाइल है। अब हर गुनाह की जड़ मोबाइल है। जितने भी आपके दौर में बुरे काम हो रहे हैं मेरी नजर में वो मोबाइल ही है उनकी जड़। हजरत फातिमा के गले में हार नहीं, जेवर नहीं। आका करीम ने पूछा बेटी फातिमा कहां डाल आई हो, कहां है? अभी तुम्हारे गले में सोने का हार था। हजरत फातिमा कहती हैं अब्बा जान मैं हार जो पहन कर गई थी, आका करीम एक बाहर से मैंने आते हुए देखा, एक गरीब इंसान था जो सवाल कर रहा था कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दिया जाए। मेरे प्यारे तवज्जो करना, हजरत फातिमा कहती हैं आका जब उस गरीब ने मुझसे सवाल किया तो मैंने फौरन से
पहले अपने जेबर को, जो कुछ मेरे पास था, मैंने अल्लाह के नाम को पर उसको दे दिया, इसलिए कि हजरत फातिमा की तरबियत कौन फरमा रहा था? अल्लाह के महबूब फरमा रहे थे। हजरत फातिमा देख रही थी कि मेरे बाप कैसी सखावत करते हैं, वो किस उनकी कैसी तरबियत हो रही है, इसलिए कि आक़ा करीम की सखावत पूरे जमाने से छुपाई नहीं जा सकती है। आज अगर इस्लाम हम तक पहुंचा है, आज अगर हम तक कुरान का पैगाम पहुंचा है, आज अगर हम तक शरीयत के अहकाम पहुंचे हैं, तो ये मेरे आका की खिदमत है, ये मेरे आका की दीन की तबलीग को आम करना है। मेरे प्यारे, जब आका करीम ने इतना सुना तो मेरे आका करीम खुश हो गए और बहुत सारी दुआएं दी। अब मेरे प्यारे, जरा हजरत फातिमा के अखलाको किरदार को मुलाजा करते चलो। बाप जैसा होता है बेटी उसी का अक्स हुआ करती है, माँ जैसी होती है बेटी उसी का अक्स हुआ करती है। अगर माँ जो होती है चुगलखोर होती है, माँ झूठी होती है, माँ बेनमाजी होती है, माँ तो बेटी भी ऐसी हो जाती है, इसलिए कि उसे लगता है कि मेरी माँ बेनमाजी है, नमाज की कोई अहमियत नहीं है। माँ झूठ बोलती है, बेटी झूठ बोलना सीख जाती है कि झूठ बोलने में कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे प्यारे, आका करीम का अखलाको किरदार कैसा था? इसलिए कि आका ने मेरे प्यारे कातिलों को माफ किया है, मेरे आका ने, मेरे प्यारे आका ने जालिमों को माफ किया है, मेरे आका ने पत्थर मारने वालों को माफ किया है। मेरे प्यारे, हजरत फातिमा की अभी छोटी सी उम्र है, अभी नन्ही मुन्नी सी है, रास्ते में हजरत फातिमा गुजरती है, हजरत अबू जहल और कुछ और लोग खड़े हुए आका करीम के बारे में बातें चीतें कर रहे थे कि देखो मोहम्मद को हम अब तक हम अमीन कहते थे, बड़ा अमानतदार समझते थे, मोहम्मद को अब तक हम बड़ा सच्चा और सादिक समझते थे, लेकिन अब तो वो अपने आप को नबी बता रहे हैं, अब तो वो अल्लाह को एक बता रहे हैं। मेरे प्यारे, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, जो मोहब्बत करने वाले थे वो उनकी अच्छाइयां बयान कर रहे थे, लेकिन अबू जहल तो पूरी जिंदगी हो गई उसने कभी नहीं माना। आका करीम ने अगर मेरे प्यारे चांद के दो टुकड़े उंगली के इशारे से किए तो इसने कहा कि जादू इनका जमीन पे तो चलता था, लेकिन अब आसमान पे भी इनका जादू चलने लगा है। ये भाग छूटा जब इसके हाथ में कंकरियों से आका करीम ने कहा इसने कि आका जरा बताओ इसमें क्या है? तो आका ने फरमाया मैं बताऊं क्या है इसमें या वो खुद बताए जो तेरे हाथ में है? इसने कहा ये तो और बड़ी बात होगी अगर वो खुद बता दे जो मेरे हाथ में है। तवज्जो करना सुन्नी मुसलमानों, आका का इल्म गैब तो देखो मेरे प्यारे आका को अल्लाह ने कैसा इल्म दिया था। हजरत मेरे आका करीम फरमाते हैं जरा मुट्ठी को सामने कर। मेरे प्यारे आका करीम ने नजरे करम डाली और कहा कान से लगा। जब अबू जहल ने अपनी मुट्ठी को कान से लगाया तो मेरे प्यारे क्या सुनता है कि कंकरियां कलमा पढ़ रही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे प्यारे आका करीम को अल्लाह ने वो इल्म अता फरमाया था कि आसमानों की तरफ नजर उठाएं तो अर्श आज़म तक देख लें, और अगर जमीन पे नजर डालें तो तातुस्सरा तक देख लें। बरेली के कलंदर इमाम इश्क व मोहब्बत इल्म व हिकमत के ताकदार इल्म व हिकमत के शहरियार मेरे प्यारे फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे प्यारे तवज्जो करना, हजरत फातिमा रुक गई और मेरे प्यारे हजरत फातिमा ने जो है कुछ कह दिया। अब अबू जहल जो था जलकर खाक हो गया, ये जल गया। मेरे प्यारे हजरत फातिमा तो ज़हरा के नन्हे मुन्ने चेहरे पर, गुलाब जैसे चेहरे पर, इस छोटी सी तितली के चेहरे पर मेरे प्यारे जरा तवज्जो तो करना। मेरे नूरे नजर लखते जिगर महबूबे खुदा हजरत फातिमा तो ज़हरा के मुंह पर एक तमाचा मार दिया। हजरत फातिमा तो ज़हरा रोती हुई अपने घर को चली गई। तवज्जो करना, हजरत फातिमा तो ज़हरा जब रोती हुई घर को गई है, मेरे आका के पास जाके बैठ गई, काशाने नबूवत पे जाके बैठ गई। इतने में पता चल गया इस बात का अबू सुफियान को। अभी तक अबू सुफियान ईमान लेकर नहीं आए थे, वो अपने कबीले के सरदार थे, अरब के लोगों में बड़ा उनका मर्तबा और मकाम था, बड़े मुअज़्ज़ज़ किस्म के आदमी थे।
तवज्जो करना, अबू सुफियान आए और हजरत फातिमा को भी बुला लिया और अबू जहल को भी बुला लिया और कहा, बताओ बेटी, अबू जहल से क्या बदला लेना चाहती हो, बताओ इसको क्या सजा दी जाए। इसलिए कि अबू सुफियान का उस वक्त में भी वो मकाम था कि आसानी से अबू सुफियान के मुकाबले में कोई आने वाला नहीं था। मेरे प्यारे, अबू सुफियान ने कहा, बताओ क्या सजा दी जाए, क्या किया जाए। मेरे प्यारे तवज्जो करना, आका करीम के सामने बात हो रही है, अबू जहल भी बैठा है, कान पकड़े हुए बैठा है। अबू सुफियान कहते हैं, बताओ बेटी फातिमा क्या सजा दी जाए। हजरत फातिमा तारीखी जुमला कहती है, मैं उस बाप की बेटी हूं जिस बाप ने बदला लेना नहीं सिखाया है, बल्कि मैं उस बाप की बेटी हूं जिसने कातिलों को भी माफ करना सिखाया है। मेरे प्यारे तवज्जो करना, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम जरा इरशाद फरमाए, जरा तवज्जो से सुनना। मेरे प्यारे, हजरत फातिमा ज़हरा है मेरे प्यारे। अब हजरत फातिमा ज़हरा की उम्र बढ़ती चली जा रही है, अब धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली जा रही है, आपकी पाकिज़गी बढ़ती चली जा रही है, आपकी नज़ाफत बढ़ती चली जा रही है, आपका हुस्न अखलाक बढ़ता चला जा रहा है, आप पर अल्लाह की रहमत खुसूसी होती चली जा रही है, हुजूर की नजर करम बढ़ती चली जा रही है। मेरे प्यारे, हजरत फातिमा ज़हरा की वो जात है कि जिनसे आका करीम का नसब आगे बढ़ा, हुजूर की औलाद आगे बढ़ी। अब हजरत फातिमा ज़हरा की उम्र शरीफ बढ़ रही है। हजरत फातिमा, तवज्जो करना, हजरत फातिमा ज़हरा की उम्र बढ़ती चली जा रही है। अब जब हजरत फातिमा ज़हरा की उम्र मेरे प्यारे 15 साल की होती है, तवज्जो रखना मेरी तरफ, हजरत फातिमा ज़हरा की उम्र जब 15 साल की हुई तो आका करीम मेरे प्यारे अल्लाह के हुक्म का इंतजार फरमा रहे थे। अल्लाह का हुक्म आ गया है हजरत फातिमा ज़हरा के निकाह करने का। अब मेरे प्यारे तवज्जो करना, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हजरत फातिमा का, हजरत फातिमा की 15 बरस की उम्र है, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की 21 बरस की उम्र शरीफ है। अब मैं यहाँ पर आपको एक जहन देना चाहूंगा, जो आज कुछ आजाद ख्याल लोग, मॉडर्न किस्म के लोग बड़े अपने आप को बड़े अक्लमंद मानते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार मानते हैं, वो कहते हैं अरे लड़की की उम्र जरा कुछ होने तो दो, लड़के की जरा कुछ खाने कमाने तो दो, तब हम शादी करेंगे। तवज्जो करना, मेरी बात दूर तक पहुंच रही होगी। मैं कहता हूं तुम्हारी बेटी अच्छी है, तुम्हारा बेटा अच्छा है, लेकिन उसके जज्बात से मत खेलिए, उसके जज्बात का ख्याल कीजिए, उसकी उम्र के तकाजों का ख्याल कीजिए। अगर तुम सिर्फ अपने कमाने के चक्कर में रहे, दौलत बढ़ाने के चक्कर में रहे, तो मेरे प्यारे याद रखना तुम्हारी इज्जत की धज्जियां बिखरने में देर ना लगेगी, चंद लम्हात लगेंगे। बड़े बड़ों के अच्छों की इज्जत बिखरती देखी है। आका करीम से बेहतरीन सोचने वाले नहीं हो। आका करीम ने अपनी लख्ते जिगर की, जिसकी पाकिज़गी का कोई ठिकाना ना था, जिसकी तहारत का कोई ठिकाना ना था, जिसके तकवे का कोई ठिकाना ना था, जिसके तकवे की कोई ठिकाना ना था, मेरे प्यारे ऐसी तकवे वाली बेटी, ऐसी नजाफत वाली बेटी जिसकी उम्र 15 साल हुई तो आका ने निकाह फरमा दिया है। मेरे प्यारे हजरत अली के साथ 21 वर्ष की उम्र शरीफ में आका करीम ने निकाह फरमा दिया है। मेरे प्यारे आका करीम ने निकाह फरमाने के बाद आका करीम ने दुआ फरमाई, या अल्लाह मेरी बेटी को नेक साले औलाद अता फरमा। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा को निकाह कराया गया तो मेरे प्यारे हजरत फातिमा ज़हरा ने मेरे प्यारे जब निकाह कराया तो आका करीम से अर्ज करती है, ए आका मेरा मेहर क्या होना चाहिए। आका फरमाते हैं, बताओ बेटी तुम्हारा मेहर क्या होना चाहिए। मेरे प्यारे एक मसला बयान करता हूं, शरीयत ये कहती है
کہ مہر جو ہے نکاح میں یہ آدمی کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، آدمی کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے، جیسی اس کی حیثیت ہے ویسا مہر ہونا چاہیے۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں ابا میرا مہر تو یہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کی قیامت کے دن آپ کی امت کی بخشش طلب کرتی ہوں، آپ کی امت کے لیے شفاعت طلب کرتی ہوں۔ اللہ اکبر! حضرت فاطمہ الزہرا کا ذرا تقویٰ تو دیکھیں، اس امت کے بارے میں خیال تو دیکھیں، اس امت کا خیال تو دیکھیں۔ میرے پیارے حضرت فاطمہ الزہرا نے آقا کریم سے اپنا مہر کیا طلب کیا کہ آقا قیامت کا جب دن آئے تو میرے پیارے قیامت کا جب دن آئے گا یہ زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی، آسمان سوا آسمان کا سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، ہر ایک انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اللہ قہر و غضب میں ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، وہ ماں جو اپنے بیٹے کو دھوپ میں کھڑا ہونا برداشت نہ کرتی تھی لیکن آج بیٹے سے کہے گی بیٹے آج تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، باپ کہے گا بیٹے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا، اللہ قہر و غضب میں ہوگا، بعض لوگ اپنے اپنے پسینے میں ڈوب کر مر رہے ہوں گے، بعض بڑے بڑے متقی پرہیزگاروں کو اپنا تک ہوش نہ ہوگا، ہر ایک یہ خیال کر رہا ہوگا میرا حساب پہلے ہو جائے، میرا حساب پہلے ہو جائے۔ لیکن میرے پیارے دیکھو تو نبی کی نور نظر کو تو دیکھو، آقا کی لخت جگر کو تو دیکھو، فاطمہ الزہرا کو تو دیکھو، شادی کا موقع خوشی کا ہوتا ہے، شادی کا موقع خوشی کا ہوتا ہے، ہر ایک آدمی اپنے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا کرنا ہے، لیکن نبی کی لخت جگر نے اگر سوچا ہے، اگر خیال کیا ہے تو آقا کی امت کا کیا ہے، اپنے ابا کی امت کا کیا ہے، حضور کی امت کا کیا ہے۔ میرے پیارے یہ حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، میرے پیارے انہوں نے اپنے بارے میں نہیں سوچا ہے، میرے پیارے جب قیامت کا دن آئے گا تو حضرت فاطمہ الزہرا میرے پیارے اپنا مہر کیا طلب کریں گی کہ میرے آقا کی امت کو بخش دیا جائے، میرے آقا کی امت کی شفاعت کرائی جائے۔ میرے پیارے یہی تو حضرت فاطمہ الزہرا ہیں، میرے پیارے جب قیامت کا دن آئے گا تو میرے پیارے ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی نامہ اعمال کی پڑی ہوگی، ہر ایک کے گناہوں کا چٹھا کھلا ہوا ہوگا، جہنم منہ کھولے ہوئے تیار ہوگا، لیکن میرے پیارے توجہ کرنا جہنم منہ کھولے ہوئے تیار ہوگا، ہر ایک انسان کو اپنی پڑی ہوگی، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا کا عالم کیا ہوگا؟ اس دن آپ کی بلندی دکھائی جائے گی، اس دن آپ کی عظمت دکھائی جائے گی، جب حضرت فاطمہ الزہرا جنت کے لیے چلیں گی اور جنت میں جانے کا راستہ پل صراط ہے جو تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، ہر ایک جنتی کو اس سے چل کر جانا ہے۔ مسلمانوں توجہ کرنا، جب حضرت فاطمہ جائیں گی تو میرے پیارے جنتی بے شمار حوریں آپ کے ساتھ جائیں گی اور تمام محشر کے لوگوں سے ایک عرش کے نیچے سے ندا کرنے والا اعلان کرے گا لوگوں نبی کی شہزادی جا رہی ہے، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، نبی کی شہزادی جا رہی ہے۔ میرے پیارے آج توجہ کرنا، حضرت امام حسین کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو اپنی امی کو دیکھتا تھا کہ میری امی اپنے گھر میں بھی اپنے بچوں سے اپنے بالوں کو ایسے چھپاتی تھی جیسے عورتیں غیر محرموں سے چھپاتی ہیں، ہمارے سامنے بھی بڑا پردے کا اہتمام کرتی تھی۔ میرے پیارے توجہ کرنا، یہ نبی کی شہزادی ہے کہ محشر سے اگر گزر رہی ہے تو اعلان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، نبی کی نور نظر جا رہی ہے، نبی کی لخت جگر جا رہی ہے۔ میرے پیارے جب اس منظر کو بریلی کے قلندر، علم و حکمت کے تاجدار، سنیوں کے امام، سنیوں کے رہنما میرے پیارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دیکھتے ہیں تو اعلان فرماتے ہیں جس کے آنچل کو ماہو مار نے نہ دیکھا، جس کے آنچل کو ماہو مار نے نہ دیکھا، اس ردا کی نزاحت پہ لاکھوں سلام، اس ردا کی نزاحت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے پیارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔
दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे में तवज्जो, मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी देखें, आपकी शर्म व हया देखें, आपके पर्दा देखें, आपका तकवा देखें, आपकी परहेजगारी देखें। मेरे प्यारे, हमारी फातिमा ज़हरा हमारी बेटियों के लिए मेरे प्यारे नमूना अमल है। अगर किसी को आइडियल बनाना है मुसलमान लड़कियों को, तो हजरत फातिमा ज़हरा को आइडियल बनाइए। इन फिल्मी ड्रामों की, इन फिल्मी एक्टरों को अपना आइडियल मत बनाओ, इसलिए कि ये तो अपने आप को ना बचा सक रहे हैं, ये तो खुद जहन्नम की डांट बना दिए जाएंगे, इनको तो जहन्नम में ठूंस दिया जाएगा। इनकी एक्टिंग मत कीजिए, इनको अपना मॉडल मत बनाइए। मैं अपनी कौम की शहजादियों से कहूंगा, मैं अपनी कौम की बेटियों से कहूंगा, जहां तक निजामुद्दीन रामपुरी की आवाज जा रही है, मैं उन सबको पैगाम दूंगा, अगर अपना किसी को मॉडल बनाना है, अगर अपना किसी को आइडियल बनाना है, तो फातिमा ज़हरा के तकवे को बनाओ, फातिमा ज़हरा की शर्म व हया को बनाओ, फातिमा ज़हरा के किरदार को बनाओ। मेरे प्यारे, देखो तो सही, हजरत फातिमा ज़हरा की हया का आलम क्या है, आपकी सखावत का आलम क्या है, आपकी जिंदगी का आलम क्या है। मेरे प्यारे, एक सहाबी बयान करते हैं मेरे प्यारे कि हजरत फातिमा ज़हरा को आका करीम ने एक नई कमीज अता फरमाई। मेरे प्यारे, हजरत फातिमा ज़हरा कहती है, नई कमीज रख दी। मैं जिस कमीज को पहन रही थी वो कमीज बड़ी फटी हुई थी, बड़ी पुरानी थी, मतलब जगह जगह से बहुत बोसीदा पुरानी हो चुकी थी। अल्लाह अकबर, जरा देखो तो सही, हजरत फातिमा ज़हरा कहती है कि किसी फकीर ने आवाज दी कि अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ कपड़ा दे दिया जाए। हजरत फातिमा कहती है, मैं चाहती तो वो पुराना भी देकर काम चला सकती थी, लेकिन मेरे प्यारे, हजरत फातिमा कहती है, मेरी गैरत को ये गवारा ना हुआ कि नया कपड़ा मेरे घर में रखा हो और मेरे दरवाजे से फकीर ऐसे लौट जाए। कहती है, अपनी नई कमीज मैंने उस फकीर को दे दी है। तवज्जो करना, ये थी नबी की नूरे नजर, ये थी नबी की लख्त जिगर। मेरे प्यारे, हजरत सलमान फारसी कहते हैं कि एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मुसाफिर आता है और आने के बाद अर्ज करता है, ए आका, ए मोहम्मद अरबी, मैंने आपके बारे में सुना है, आप गरीबों को बड़ा नवाजते हैं, आप कमजोरों को बड़ा नवाजते हैं, आप यतीमों के हमदर्द हैं, आप बेवाओं के सहारा हैं। ए मोहम्मद, मैंने सुना है आपसे बढ़कर इस अरब के खित्ते में कोई भी सखी नहीं है, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए कि होता कैसे, अल्लाह ने अपने महबूब को गनी बनाया था, अल्लाह ने अपने महबूब को ईशान अता फरमाई थी। तवज्जो करते चले जाना लोगों, जरा देखें आका करीम की बारगाह में जब ये मुसाफिर आता है और अपना अरीजा रखता है कि मुझे जरा कुछ दे दिया जाए, मैं कई दिन का भूखा हूं, मुझे कुछ खाना खिला दिया जाए। ऐ मुसलमानों, तवज्जो करना, आका फरमाते हैं कि मेरे घर में खुद 3 दिन से खाना नहीं बना है। अल्लाह अकबर, आका का सब्र तो देखें, आका की बर्दाश्त तो देखें, तुम किस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो। और मौरिखीन बयान करते हैं कि आका के घर में कभी कभी 40-40 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, सिर्फ दूध से और खजूर से काम चला लिया जाता था। मेरे प्यारे, तवज्जो करना, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जिस नबी ने एक दिन खाना खाया तो 2 दिन भूखा रहकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे प्यारे, नबी तो वो थे कि जिनके घर में 3-3 दिन तक चूल्हा ना जले, लेकिन उम्मती तो वो है जो एक दिन में 3 टाइम खाते हैं। सुबह में बढ़िया नाश्ता चाहिए, दोपहर में अच्छा ब्रेकफास्ट चाहिए, शाम में मेरे प्यारे बढ़िया डिनर चाहिए इन्हें, अच्छा शेर होकर 3 टाइम खाते हैं। नबी आखिरुज़ ज़मा 40-40 दिन तक चूल्हा न जलता था, तुम उस नबी के कलमा पढ़ने वाले हो। तवज्जो तो करना, नबी पूरी रात खड़े होकर इबादत करते थे, तुम अपनी उम्मत के लिए दुआ करते थे और सिजदे में सर रखते थे, खड़े खड़े आपके पैरों पे वर्म आ जाता था और अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते थे, ए मालिक, तमाम हमदो सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए। ए मालिक, ए रब्बे हबली उम्मती, ए मालिक, मेरी उम्मत को
को बख्श दे, ए मालिक मेरी गुनाहगार उम्मत को माफ फरमा दे। मेरे प्यारे आका तो ये दुआ करते थे, आका तो 3-3 दिन तक खाना नहीं खाते थे और 5 वक्त नमाज पढ़ते थे और अल्लाह की इबादत करते थे। लेकिन उम्मती ऐसा है, कलमा पढ़ने वाला ऐसा है जो खाता 3 टाइम है लेकिन हफ्ते में कभी जुमे का भी नंबर भी नहीं आता है। बास तो ऐसा है जो ईद से ईद की पढ़ता है, बकरा ईद से बकरा ईद की पढ़ता है, जुमे से जुमे की पढ़ता है। बताओ तो सही, तुम किस मुंह से आका का सामना करोगे, किस मुंह से कहोगे आका आपके उम्मती है, आका आपका कलमा पढ़ने वाले हैं। तवज्जो करना, ये उम्मत के लोग कैसे आका के सामने अपने आप को मुसलमान कहेंगे। मेरे प्यारे आका करीम फरमाते हैं, देख मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है, मैं तो देता हूं बहुत कुछ, लेकिन मेरे घर में इस वक्त में कुछ भी नहीं है। अल्लाह अकबर। आका की सखावत का आलम तो ये था मेरे प्यारे, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्वे बहा दिए हैं। और यहीं तक नहीं बल्कि आका की सखावत का आलम तो ये था, वाकया जूदो करम है, शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मेरे प्यारे यहीं तक नहीं बल्कि यहां तक कहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नजी, और गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है इस वक्त में। हालांकि आका करीम ने कभी भी अपने दर से वापस नहीं लौटाया। कहा जाओ मेरी बेटी के पास, हजरत सलमान फारसी से कहा इन्हें जाओ मेरी बेटी के पास ले जाओ। हजरत सलमान फारसी ने हजरत फातिमा-तुज़-ज़हरा का दरवाजा खटखटाया, बहुत तवज्जो से दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन? कहा आका करीम ने भेजा है, सलमान फारसी हूं। कहा क्यों आए हो? कहा एक सवाली एक मुसाफिर आए हैं और भूखे हैं, खाना खिलाया जाए। हजरत फातिमा कहती हैं, ऐ सलमान फारसी, मेरे घर में भी 2 दिन से खाना नहीं बना है, बच्चे भी, मैं भी, अली सब भूखे। ये नबी का घराना था लोगों। आज तुम जिनकी मोहब्बत में यहां बैठे हो उनको याद तो करो, उनकी जिंदगी को अपने सामने तो रखो, तवज्जो तो करो। आज दौलत के माने ठिकाना नहीं है। आदमी के 4-4, 1 लेकर 2 लेकर 3 लेकर, लेकिन दौलत से पेट नहीं भर रहा। तवज्जो करो, अल्लाह को तो याद करो। मेरे प्यारे हजरत फातिमा कहती हैं, सलमान फारसी मैं भी भूखी हूं, बच्चे भी भूखे। कहा लेकिन हमारे घर की ये रिवायत नहीं है कि हमारे घर से कोई खाली वापस किया जाए। कहा लो ये मेरा दुपट्टा है, लो एक शमऊन नाम का यहूदी, लो जाओ इसको गिर में रख दो या बेच दो, और जो कुछ पैसे दे इस फकीर को दे दो या इस मुसाफिर को लेकर खाना खिला दो। हजरत सलमान फारसी ने जब हजरत फातिमा-तुज़-ज़हरा के इस दुपट्टे को हाथ में लिए तो हाथ कपकपा गए। नबी की शहजादी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की नूरे नजर, नबी के लख्ते जिगर, जिनका मकाम क्या था कि वो तमाम जन्नती औरतों की सरदार हैं मेरे प्यारे, और उन बेटों की माँ है कि जो तमाम जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। नबीउल अंबिया की बेटी है, सैयदुल अंबिया की बेटी है, अल्लाह के हबीब की बेटी है, लेकिन उनकी गुर्बत का आलम क्या है मेरे प्यारे। तवज्जो करना, कहते हैं जब हजरत सलमान फारसी ने हजरत फातिमा का दुपट्टा अपने हाथ में लिया तो हाथ कपकपा गए, और हाथ कपकपाए तो मेरे प्यारे लेकर जा रहे हैं। शमऊन यहूदी के पास जब लेकर पहुंचे, कहा लो इसे गिरवे रख लो और कुछ पैसे दे दो, या इसे खरीद लो और इसकी कीमत दे दो। शमऊन यहूदी ने जब उस आंचल को देखा, कहा ये तो बताओ आज फातिमा-तुज़-ज़हरा को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी है कि उन्होंने अपने सर का दुपट्टा बेचने का इरादा कर लिया है।
अपने सर के दुपट्टे को गिर में रखने का इरादा कर दिया है। ऐसी कौन सी जरूरत आ गई है? हजरत सलमान फारसी कहते हैं एक मुसाफिर है जो भूखा है, आका करीम ने अपनी बेटी के घर भेज दिया है और उनके घर में तकरीबन 2 दिन से खाना नहीं बना है, उनके घर में खाने पीने कुछ सामान नहीं है। देखो तो सही गरीबों से कैसी मोहब्बत है, देखो तो सही भूखों से कैसी मोहब्बत है, देखो तो सही कमजोरों से कैसी मोहब्बत है। मेरे प्यारे, आज दुनिया की कोई औरत अपने दुपट्टे को बेच नहीं सकती है, अपने आंचल को दे नहीं सकती है। मेरे प्यारे तवज्जो करना, समून यहूदी कहता है वाकई यही नेक लोग हैं जिनके बारे में तौरात में कहा गया है, यही वो नेक लोग हैं, इनसे बढ़कर इस वक्त में रूए जमीन पर कोई मुत्तकी नहीं है, कोई परहेजगार नहीं है। यही लोग अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा तकवा और तहारत वाले हैं, यही लोग सबसे ज्यादा मुत्तकी हैं। जब शमून ये देखता है तो कहता है वाकई ये लोग हक पर हैं, वाकई ये लोग सच पर हैं। शमून कहता है ए सलमान फारसी, तुम गवाह हो जाओ, मैं हजरत फातिमा ज़हरा के अब्बा और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता हूँ और सच्चे दिल से मुसलमान हो जाता हूँ। अल्लाह अकबर, ये कलमा पढ़ता है और मुसलमान हो जाता है, और मुसलमान होने के बाद मेरे प्यारे बहुत सारा गल्ला देता है, जो देता है गेहूं देता है और कुछ खाने पीने के और सामान देता है और कुछ पैसे देता है। कहता है लो हजरत फातिमा ज़हरा की बारगाह में मेरी तरफ से ये हदिया दे देना, ये नजराना दे देना। हजरत सलमान फारसी आते हैं और मेरे प्यारे जो लेकर आते हैं कुछ और हदिया लेकर आते हैं, पैसे लेकर आते हैं। हजरत फातिमा ज़हरा मेरे प्यारे उस जौ को अपने हाथ से पीसती हैं और उनकी रोटियां बनाती हैं, और रोटियां बनाने के बाद सारी की सारी हजरत सलमान फारसी से कहती हैं लो इस मुसाफिर को दे दो, सब खा लेगा। हजरत सलमान फारसी कहते हैं ए फातिमा कुछ अपने बच्चों के लिए बचा लो, ए फातिमा कुछ अपने घर वालों के लिए अपने लिए बचा लो, कई दिन से खाना नहीं खाया है। फातिमा, हजरत फातिमा तारीखी जुमला कहती है, कहा कहती है मैं उस बाप की बेटी हूं जिसने अपना सब कुछ इस दीन के लिए कुर्बान कर दिया है। ये मैं इस सब कुछ इस फकीर को देती हूँ, मैं सारी रोटियां इस फकीर को दे देती हूँ, और सब कुछ जो हदिया नजराना था वो सब उस मुसाफिर को दे देती है। मेरे प्यारे सरकार मुफ्ती आजम हिंद कहते हैं आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगतों का भला हो। मेरे प्यारे तवज्जो करना कि हजरत फातिमा ज़हरा मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दिन आती है और अर्ज करती है अल्लाह के हबीब ए मुस्तफ़ा जाने रहमत, ए अब्दुल्लाह के प्यारे, ए आमना के प्यारे, जरा तवज्जो तो करो, हमारी तरफ भी तो नजरे करम फरमाओ। ए आका हमारे पास एक ही चमड़े का बिस्तर है, ए आका हमारा एक ही बिस्तर है, आका हमारे लिए कुछ इंतजाम कर दीजिए। आका करीम फरमाते हैं ऐ मेरी बेटी, पहले भी एक नबी ऐसे गुजरे हैं जिनके पास कुल न बिस्तर था, न चारपाई थी, न कोई सामान था, सिर्फ एक ऐसे चमड़े के, एक ऐसी चादर के साथ उन्होंने 10 साल की जिंदगी गुजारी कि जानवरों को चारा भी उसी पे खिलाते और खुद भी उसी पे लेटते, आराम करते और ओढ़ लेते। ऐ मेरी बेटी सब्र करो, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। मेरे प्यारे हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला, हजरत इमाम हसन दोनों जिंदगी गुजार रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं एक मर्तबा मेरी अम्मी ने घर में खाना पकाया, रोटी पकाई, मेरे अब्बा हजरत अली शेर खुदा दामादे पैगंबर को खाना खिलाया, मेरे भाई इमाम हसन को खिलाया, मुझे खिलाया, और मेरी अम्मी जान के लिए थोड़ी सी रोटी बाकी रह गई थी, कुछ सब्जी बाकी रह गई थी। इतने में बाहर दरवाजे से ऐलान आता है, आवाज आती है कि अल्लाह के नाम पर अगर घर में कुछ हो तो दे दिया जाए। मेरी अम्मी कहती है बेटा इस खाने को उठाओ और अल्लाह के नाम पे दे दो। मैंने कहा अम्मी जान तुमने 2 दिन से नहीं खाया है। हजरत फातिमा जवाब देती है बेटा अगर
एक दिन और भी ना खाऊंगी तो कोई बात नहीं है। ये थी नबी की शहजादी, ये थी नबी की लख्त जिगर। मेरे प्यारे हजरत फातिमा ज़हरा की चादर में तकरीबन 16 चमड़े के पैबंद लग जाया करते थे, 16 चमड़े के पैबंद लग जाया करते थे। मेरे प्यारे, एक मर्तबा आका करीम अपने एक सहाबी को लेकर हजरत फातिमा के दरवाजे पर हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद दरवाजा खटखटाया। हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, आका कौन है आपके साथ में, अकेले हैं या कोई साथ में है? आका फरमाते हैं, बेटी मेरे साथ में मेरे एक सहाबी हैं, हम घर में आना चाहते हैं। अर्ज करती हैं, अब्बा अगर आप आना चाहते हो तो इजाजत है, आ जाओ, लेकिन आपके सहाबी को इजाजत नहीं है। आका फरमाते हैं, बेटी बात क्या है? अर्ज करती हैं, आका मेरे पास सिर्फ एक चादर है और वो भी इतनी छोटी है कि मैं सारे बदन को ढक नहीं सकती हूँ। आका अगर पैर ढकती हूँ तो हाथ खुल जाते हैं, ऊपर का जिस्म ढकती हूँ तो नीचे खुल जाती हूँ। आका आप तो मेरे बाप हैं, महरम को कुछ बदन के हिस्से दिखाने जायज होते हैं। आका अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाइए, लेकिन आपके सहाबी को इजाजत नहीं है। प्यारे आका जरा प्यारे देखो तो सही, मेरे प्यारे आका की बेटी है, मेरे प्यारे आका की ये बेटी है, जरा तवज्जो तो करते चले जाना। मेरे प्यारे आका की बेटी है, इनका मकाम क्या है, इनका मर्तबा क्या है, इनकी अजमत क्या है, इनकी शान क्या है। इन्होंने मेरे प्यारे भूखा प्यासा रह के बताया कि अगर भूखा रहना पड़े तो अल्लाह की रजा के लिए भूखे रह लो, अगर प्यासा रहना पड़े तो लेकिन प्यासे रह लो, अल्लाह को राजी कर लो, उसके रसूल को राजी कर लो। अगर कम कपड़े पहनने पड़े तो कम कपड़े पहन लो। आजकल की हमारी बहनों को पैगाम दिया, आजकल की हमारे घर की बहू बेटियों को पैगाम दिया कि कपड़ों का ठिकाना नहीं है, सेफ अलमारी भरी पड़ी है, तिजोरियां भरी पड़ी है, हर महीने में नया चाहिए, हर हफ्ते में नया चाहिए, हर शादी पे नया चाहिए। तवज्जो तो करो, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन कपड़े चाहिए, हर डिजाइन का चाहिए, हर महीने का अलग चाहिए, हर ईद हर बकरा ईद पे नया चाहिए। लेकिन अगर पूछो कि बहन तुझे सही करके नमाज भी याद है कि नहीं है, बहन जरा सही करके बता, कपड़े पाक करने का तरीका आता है कि नहीं आता है, बहन जरा ये बता, तुझे कुरान सही तलफ्फुज से पढ़ना आता है कि नहीं आता है, तो मेरे प्यारे 100 में से तकरीबन 1 आध 2 नजर ऐसी आएंगी जो सही तलफ्फुज से कुरान पढ़ सकती है, सही से अल्लाह के अहकाम पर सब्र करने वाली हो, सही से अल्लाह 5 वक्त की नमाजी हो, नमाज की पाबंद नहीं है। आओ तो सही जरा हज़रत फातिमा ज़हरा के मकाम को देखो। मेरे प्यारे इमाम हुसैन कहते हैं, मैंने बचपन में देखा कि मेरी अम्मी अगर खाना बनाती थी तो कुरान पढ़ती रहती थी, दूसरा कोई काम करती थी दरूद शरीफ पढ़ती रहती थी, कलमा शरीफ का विर्द करती रहती थी। मेरी माँ हर वक्त कुरान की तिलावत करती थी और इबादत का आलम यह था कि मेरी माँ हमें सुलाने के बाद रात को ईशा की नमाज के बाद अपना मुसल्ला बिछा देती और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, एक फातिमा के लिए एक ऐसी लंबी रात बना दे कि अल्लाह के नबी की प्यारी बेटी फातिमा दिल खोल कर इबादत कर ले, एक ऐसा लंबा सिजदा करने के लिए एक ऐसी रात बना दे कि फातिमा दिल खोल कर इबादत कर ले। मेरे प्यारे उम्मत मुस्लिमा की औरतों को ये पैगाम था कि तुम दुख की जिंदगी उठा लेना, गम की जिंदगी उठा लेना, तकलीफ उठा लेना, परेशानी उठा लेना, लेकिन अल्लाह को राजी कर लेना। जब हजरत फातिमा ज़हरा का आका करीम ने ये अखलाक देखा, ये किरदार देखा, ये तकवा देखा, ये परहेजगारी देखी, तो आका करीम ने फरमाया, ऐ बेटी मैं भी तुझसे राजी हूँ, अल्लाह भी तुझसे राजी है, बताओ तो सही उसका मकाम किस बुलंदी पर होगा जिससे अल्लाह भी राजी है, उसके रसूल भी राजी है। तो अगर जो जो तुम में ये चाहता है कि वो अल्लाह राजी कर ले, उसके रसूल को राजी कर ले, तो अपने दिलों में हजरत फातिमा की मोहब्बत को उतार ले। ये हजरत फातिमा ज़हरा थी, ये आपका मकाम था। मेरे प्यारे, एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहीं से कुछ गुलाम और लोंडी आई और कुछ और सामान तोहफे तहाइफ आए।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو مشورہ دیا، کہا تم اپنے گھر کا سارا کام خود کرتی ہو اور سارا کام کرتی ہو، کنویں سے پانی لاتی ہو، رسیوں کے نشان آپ کے سینے، آپ کے ہاتھ، آپ کی کمر پہ پڑ گئے، گھر کی جھاڑو خود مارتی ہو، چکی خود پیستی ہو، سارے کام تم خود کرتی ہو، بہت تکلیف اٹھاتی ہو۔ آقا کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ایک غلام یا ایک کنیز لیے لیتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی آقا کریم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کچھ دیر بیٹھے رہتے ہیں۔ آقا کریم کی بارگاہ میں بہت سارا ازدحام تھا، بہت لوگ تھے، کوئی بات نہ کر سکے۔ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے دونوں واپس پلٹ کے آ گئے۔ اگلے دن جب ہوتا ہے تو حضور خود حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر آتے ہیں۔ میرے پیارے، جب بھی حضرت فاطمہ الزہرا آقا کریم کے گھر تشریف لے کر آتی تھی تو آقا کریم کا یہ طریقہ تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی پیشانی کو چومتے، آپ کے ہاتھوں کو چومتے، بوسہ دیتے اور اپنی جگہ اپنی مسند پر بٹھاتے اور بہت دیر تک حضرت فاطمہ سے باتیں کرتے رہتے، مسکرا مسکرا کر آقا کریم باتیں کرتے رہتے، بڑی محبت فرماتے، بڑا پیار فرماتے آقا کریم۔ ایسے لگتا کہ آقا کریم بہت خوش ہو گئے ہیں۔ میرے پیارے، جب آقا کریم حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ اپنے ابا جان حضرت محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں کو چومتی، آقا کریم کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ میرے پیارے، یہ دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں چومنا چاہیے، کسی کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے، لیکن آقا کریم کی بارگاہ سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ والدین کے ہاتھ چومنا جائز ہے، عالموں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، اگر پیر شریعت کے مطابق ہے تو اس کے بھی ہاتھ چومنا جائز ہے، بزرگان دین کی دستبوسی کرنا جائز ہے، ماں کے ہاتھ چومنا جائز ہے، ماں کے قدم بھی چومو۔ اس لیے آج تم جگہ جگہ بھٹکتے پھرتے ہو، دنیا کی کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اللہ نے ماں کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس کے قدموں کے نیچے اس جنت کو اٹھا کے رکھ دیا ہے، جس کی خواہش مند دنیا میں ہر ایک انسان۔ اب میرے پیارے، آقا کریم حضرت فاطمہ کے گھر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹی ذرا بتاؤ تو صحیح تم آئے کیوں تھی، کیا بات تھی، کیا بات تھی۔ آقا کریم کی بارگاہ ہم عرض کرتی ہیں، آقا میرے پیارے آقا، گھر میں بہت سارا کام ہے، دیکھو میرے ہاتھوں میں ٹھیٹے پڑ گئی ہیں، گھر کا سارا کام کرتی ہوں، پانی بھر کے لاتی ہوں، آقا میری کمر میں نشان پڑ گئے ہیں، دیکھو تو صحیح، یہ امام حسن و حسین کی ماں ہے، علی کی یہ گھر والی ہے، علی کی منپوہا ہے، پیغمبر اسلام محمد عربی کی شہزادی ہے۔ میرے پیارے، اگر یہ چاہتی تو میرے پیارے جنت کی حوریں آتی اور ان کے گھر کا سارا کام کر کے چلی جاتی، لیکن انہوں نے امت مسلمہ کی عورتوں کو پیغام دیا کہ دیکھو اپنے گھر کا کام اگر کرنا پڑے، اگر تمہیں کام کرتے تھکن ہو جائے، اگر تمہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑے، پریشانی اٹھانی پڑے تو نبی کی شہزادی کو یاد کر لینا، نبی کی شہزادی کی تکلیف کو یاد کر لینا، نبی کی شہزادی کی کاموں کو یاد کر لینا۔ دیکھو میں نے کتنے کام کیے ہیں، مجھ سے زیادہ لاڈلا کون ہو سکتا ہے۔ نبی کی لاڈلی تھی، نبی کی نور نظر تھی، نبی کی لخت جگر تھی، نبی کی بہت زیادہ چہیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب آقا نے اتنا سنا تو اپنی لاڈلی کو کہا بیٹی آگے آؤ، اور میرے پیارے آقا نے فرمایا اے فاطمہ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر کوئی نسخہ نہ بتا دوں، کیا تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتا دوں کہ جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اس کے رسول بھی راضی ہو جائے، کیا میں تمہیں اس سے اچھی بات نہ بتا دوں۔ آقا عرض کرتی ہیں آقا بالکل بتا دیجئے، ہم تو اسی بات میں خوش ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، اس کے رسول راضی ہو جائے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اے شہزادی، تم سونے سے پہلے یا ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرنا، اور 33 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرنا، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا نے یہ آپ کو تسبیح بتائی، حضرت فاطمہ خوش ہو گئی، اور میرے پیارے اللہ کی اتنا پیاری بیٹی نے چوں تک بھی نہ کہا، اور میرے پیارے
जो जो लोग ये कहते हैं कि शाम को काम करके बड़े थक जाते हैं, बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, मैं उन सबको ये बताना चाहूंगा, बड़ा आसान नुस्खा है। 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लीजिए और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लीजिए और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लीजिए। अगर सोते वक्त में पढ़ लिया है तो मेरे प्यारे दिन भर की जितनी थकन थी सबकी सब दूर हो जाएगी, बहुत सारी बीमारी दूर हो जाएंगी, बॉडी फिट हो जाएगी, ताकत आ जाएगी, हिम्मत और हौसला आ जाएगा। और मेरे प्यारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि जो बंदा मोमिन हर नमाज के बाद इस तस्बीह को पढ़ लेगा, अल्लाह उसकी हर दुआ को कबूल फरमा लेगा, उसकी हर दुआ को पूरा फरमा देगा, उसकी हर दुआ को पूरा फरमा देगा और उस पर अपनी नजरें करम। अब मेरे प्यारे तवज्जो करना, हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की जिंदगी देखें। मेरे प्यारे आकाए करीम जिनकी तरबियत फरमा रहे हैं, जिनके साए में हजरत फातिमा अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे प्यारे हजरत फातिमातुज़ ज़हरा की जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती चली जा रही थी, आपके तकवे का पूरे अरब में शोहरा था, आपकी तहारत का पूरे से पूरे अरब में शोहरा था। मेरे प्यारे कुछ कुरैश खानदान की औरतें आईं और आने के बाद मेरे प्यारे हजरत फातिमातुज़ ज़हरा के लिए आका करीम की बारगाह में अर्ज की, आका हमारे घर पे शादी है, हम ये चाहते हैं कि आप अपनी बेटी को हमारे घर पे शादी में भेज दीजिए। आका करीम ने कुछ देर सोचा और सोचने के बाद आका करीम ने कहा ठीक है मैं अपनी बेटी को भेज दूंगा। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे तवज्जो करना, हमारी बेटियां भी शादियों में जाती हैं, पहले इस बात को सुनिए जरा। आका करीम ने ये वादा फरमा लिया ठीक है मैं भेज दूंगा। इतने में मेरे प्यारे आका करीम अपने घर आते हैं और आने के बाद अपनी बेटी फातिमा से कहते हैं, ऐ बेटी फला खानदान की यानी कुरैश की कुछ औरतें आई थी और उन्होंने मुझसे अर्ज किया, ऐ आका आपकी बेटी को हम एक शादी में बुलाना चाहते हैं। ऐ बेटी मैंने उनसे हाँ कर दी है, क्या बेटी तुम शादी में चली जाओगी? क्या बेटी तुम मेरा कहना मानोगी? अल्लाहु अकबर, कैसे नर्म लहजे में बात फरमा रहे हैं। मेरे प्यारे आका करीम की ये आदत थी, जब कहीं सफर पे जाते या कहीं बाहर जाते और पहले घर में आते तो सबसे पहले अपने घर नहीं जाते, किसी और से मुलाकात नहीं करते, बल्कि अपनी बेटी हजरत फातिमा के घर जाते और कोई सामान लेकर आते तो सबसे पहले हजरत फातिमा को देते। मेरे प्यारे ये सुन्नत ये है कि जब कोई चीज बाहर से लेकर आओ तो पहले बेटी के हाथ में दो और कहीं बाहर से आओ तो बेटी से मुलाकात करो, और अगर वो अपने घर की हो गई है तो उसके घर जाके मुलाकात करके आओ। ए शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, निजामुद्दीन नईमी रामपुरी का पैगाम लेकर जाओ, अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। मेरे प्यारे आका करीम फरमाते हैं, दुनिया में 5 औरतें ऐसी हैं जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हैं। बेटी बाप से बगैर मतलब के मोहब्बत करती है, बहन अपने भाई से बगैर किसी मतलब के मोहब्बत करती है, खाला अपने भांजे से बगैर किसी मतलब के मोहब्बत करती है, फूफी अपने भतीजे से बगैर किसी मतलब के मोहब्बत करती है, और माँ अपने बेटे से बगैर किसी मतलब के मोहब्बत करती है। आका ने फरमाया इन औरतों की इज्जत करो, इन औरतों का अदब और एहतराम करो। मेरे प्यारे इन औरतों को दिल खुश करोगे अल्लाह खुश हो जाएगा, उसके रसूल खुश हो जाएंगे। तवज्जो करना मेरे प्यारे, ये आका का करम था, वरना आका के नबी होने का ऐलान करने से पहले तो बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, बेटियों की गर्दनें काटी जा रही थी, औरतों को मारा जा रहा था। मेरे प्यारे लेकिन आका करीम ने बता दिया कि बेटी तो सीने से लगाने की चीज है, बेटी मोहब्बत करने की चीज है, बेटी प्यार करने की चीज है। अल्लाहु अकबर। ए लोगों, आज भी कुछ इस किस्म के लोग पैदा हो गए हैं जो बेटियों से मोहब्बत नहीं करते हैं, बड़ा बेगाना समझते हैं, 2 तरीके का रवैया करते हैं। अगर तुमने बेटी से मोहब्बत की है, बेटी से दिल लगाया है, तो
बेटे तुमने याद रखना, तुमने नबी की सुन्नत को अदा कर दिया है, तुमने नबी के तरीके को अदा कर दिया है। मेरे प्यारे हजरत फातिमा खामोश है। इतने में आका करीम की बारगाह में हजरत जिब्रील मेरे प्यारे सिदरतुल मुंतहा के मक्की आ जाते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने आपके लिए सलाम अर्ज किया, सलाम भेजा है, सलाम पेश किया है। मेरे प्यारे आका करीम मेरे प्यारे अर्ज करते हैं, मेरे आका करीम कहते हैं बताओ तो सही जिब्रील और क्या बात है। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के महबूब, अल्लाह ने पहले तो तुम पर सलामती भेजी है और उसके बाद अल्लाह का हुक्म है कि अपनी शहजादी को आप शादी में जरूर भेजिए, इसलिए कि आपकी शहजादी के जाने से लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, लोगों की इस्लाह हो जाएगी, बहुत से लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। आका करीम की बारगाह में हजरत फातिमा ज़हरा अर्ज करती है, आका जिस शादी में आप भेज रहे हैं वो कबीला कुरैश की शादी है, वो बड़े बड़े अमीरों की बेटियां आएंगी, बड़े बड़े अमीर घरों की औरतें होंगी, बड़े बड़े उम्दा लिबास पहन नहीं होंगी, बड़े बड़े कीमती लिबास पहन नहीं होंगी। आका हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है। आका आपने फक्र फाके को पसंद किया है, आपने गरीबी को सीने से लगाया है। आका आपके घर में तो हाल ये है कि 40-40 दिन तक आपके घर में चूल्हा नहीं जलता है, खजूर और दूध पे जिंदगी गुजारी जाती है। आका मैं उन मालदारों की बेटियों में कौन सा लिबास पहन कर जाऊंगी, वो तो मेरे ऊपर बड़ी हंसेंगी, वो तो मेरी बड़ी मजाक बनाएंगी। अल्लाह अकबर। इतने में जिब्रील अर्ज करते हैं, ए आका आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे जन्नत से तुम्हारी बेटी के लिए जन्नती लिबास लेकर भेजा है। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील जन्नती लिबास पेश करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत जिब्रील चले जाते हैं। अल्लाह की प्यारी अल्लाह के प्यारे नबी की नूरे नजर, लख्ते जिगर, सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा मुत्तकिया परहेजगारा मेरे प्यारे हजरत फातिमा ज़हरा जन्नती लिबास को पहनती है, आपके साथ गोया के हूरें चल रही है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा जब वहां पहुंचती हैं और उनके पहुंचने से पहले वहां की औरतें प्लानिंग बना रही थी कि आज फातिमा की मजाक उड़ानी है, आज तो उनकी खिंचाई करनी है। लेकिन जब हजरत फातिमा ज़हरा के नूरी चेहरे पर नजर पड़ती है, आपके नूरी चेहरे को देखती हैं, सबकी सब हैरत में पड़ जाती हैं। बताओ तो सही, नबी के नूर नजर के चेहरे की चमक तो देखो, इनके हुस्न खूबसूरती को देखो। अल्लाह अकबर। उनके लिबास को देखती हैं, दंग रह जाती हैं, उनके हुस्न को देखती हैं, उनके कमाल को देखती हैं, उनके तकवर परहेजगारी को देखती हैं, मेरे प्यारे उनके नूर को देखती हैं, इसलिए कि नूर कैसे ना चमकता, ये नूर वाले की शहजादी थी मेरे प्यारे। तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का और तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का, और सुबह तैबा में हुई बट्टा है बड़ा नूर का और सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला। मेरे प्यारे तवज्जो करना, अब हजरत फातिमा ज़हरा वहां बैठी हुई हैं, सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, सब देखती की देखती रह गई, उनकी हैरत की इंतहा न रही। अपने दिल में ख्याल कर रही थी, हमने सोचा भी न था कि नबी की लख्ते जिगर का हुस्न ऐसा होगा, हमने सोचा भी न था कि नबी के लख्ते जिगर के कपड़े ऐसे होंगे। अर्ज करती है, ए फातिमा ये तो बताओ ये कपड़े आए कहां से हैं, ये तो मक्के के कपड़े लगते नहीं है, ये तो यमन के कपड़े लगते नहीं है, ये तो इराक और शाम के कपड़े लगते नहीं है, ये तो ऐसे लगता है जैसे इस रूए जमीन पर कपड़े बने ही नहीं हो, ऐसा लगता है ये तो दुनिया के किसी कारीगर के बनाए हुए कपड़े नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे वो हैरत में पड़ी हुई हैं, उनकी हैरत की इंतहा नहीं है, पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, बड़ी हैरत में पड़ी हुई है। अर्ज करती हैं, अब तो सब आगे पीछे भागी फिर रही है, अर्ज करती है, ए नबी की लख्ते जिगर, ए फातिमा ज़हरा, जरा ये तो बताओ आप
आप क्या खाएंगी, आपके लिए क्या पेश किया जाए, आप क्या पसंद करती है। जरा तारीखी जुमला सुनते चले जाओ मेरी प्यारी बहनें और माएं। जरा हजरत फातिमा ज़हरा के इस जुमले को जरा तवज्जो से अपनी दिलों में उतारें, अपनी जिंदगियों में शामिल करें और देखें कि हजरत फातिमा कहती है, मैं तो उस बाप की बेटी हूं, मैं तो उस बाप की बेटी हूं जो एक दिन खाते हैं और 2 दिन ना खाकर फाका रहकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मैं भी अपने बाप की बेटी हूं, बस यही करती हूं, एक दिन खा लेती हूं और 2 दिन ना खाकर फाका रहकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं। इसे सब्र कहते हैं, इसे बर्दाश्त कहते हैं। ये नहीं है कि 3 टाइम खाकर भी डकारे मार रहा है और 3 टाइम खाकर भी जबान इतनी लंबी लिए बैठा है, लोगों को तंग करता है, लोगों की बदी गीबत और चुगली करता है। तेरी मेरी गीबत करके तू क्या समझता है कुछ कमाल कोर जाएगा? ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता है। कामयाब तुम हो जो अल्लाह के जिक्र में आए हो, उसके रसूल के जिक्र में आए हो। हर एक इंसान नहीं आ सकता, हर एक इंसान की हिम्मत नहीं है कि इस जिक्र में आके बैठ जाए, इस महफिल में आके बैठ जाए। बल्कि हक तो वही है जो किसी ने कहा है, जहां जिक्र हबीब होता है वहां खुद खुदा भी करीब होता है। आते हैं वही जिनको मुस्तफा बुलाते हैं। तवज्जो करना, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ईमान वालों की तकदीर में होता है, मोहब्बत करने वालों के नसीब में होता है। मेरे प्यारे तवज्जो करना, एक हदीस सुनो। अल्लाह के हबीब मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, जहां अल्लाह का जिक्र होता है, उसके हबीब का जिक्र होता है, तो मेरे प्यारे फिरिश्ता, एक आसमान से एक फिरिश्ता निदा करता है, ऐ लोगों तुम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने जमा हुए हो, अगर तुम्हारा मकसद अल्लाह को राजी करना है, उसके रसूल को राजी करना है, तो तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम सबके सब बख्श दिए गए हो। तुम्हारी बख्शिश कर दी गई है, तुम सबको जन्नती बना दिया गया है, तुम्हारी गुनाहों को बदल के नेकियों में तब्दील कर दिया गया है। अब मेरे प्यारे निजामुद्दीन रामपुरी को यह ऐलान कर देना चाहिए कि आप अपने घर थे तो अपने बाप के थे, अपनी दुकान में थे तो अपने बाप के थे, बाजार और मार्केट में थे तो अपने बाप के थे, रिश्तेदारों में थे तो अपने बाप के थे, खेतों खलियान में थे तो अपने बाप के थे। मेरे प्यारे, आप अगर मुरादाबाद में थे तो अपने बाप के थे, बरेली में थे अपने बाप के थे, दिल्ली जर्मन जापान इधर उधर कहीं भी दुनिया की किसी खत्ते में थे तो अपने बाप के थे। यहां ऐलान करूंगा, जब इस महफिल में आ गए हो तो रसूल पाक के हो गए हो, हबीब परवरदिगार के हो गए हो। डॉक्टर इकबाल ने जो कहा था, आपकी तुर्बत आज भी ऐलान होता है कि मोहम्मद से फातून है तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या है लो हो, कलम तेरे हैं कि मोहम्मद से फातून है तो हम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल अब मेरे प्यारे तवज्जो करना कि हजरत फातिमा ज़हरा वहां बैठी हुई है। अब वो कहती हैं, लौटते हैं कि बताओ तो क्या खाएंगे आप, क्या लेंगे आप, आपको वही पेश किया जाएगा, हम सब आपका हुक्म मानेंगे, आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे। हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं, अगर आप मेरा कहना मानना ही चाहती हैं तो आप भी मेरे आका मेरे अब्बा का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। मेरे प्यारे तवज्जो करना, खाना नहीं मांगा, बकरे की नहीं मांगी, ये नहीं मांगा, वो नहीं मांगा, अल्लम गुल्लम नहीं मांगा, कौरमा और बिरयानी नहीं मांगी। मेरे प्यारे तवज्जो करना, हमारा हाथ तो आगे को बढ़ता है, अपने घर एक प्याले में बचाता है, लेकिन जालिम बारात में जाता है तो डोंगा बदलवाओ, डोंगा बदलवाओ, डिश बदलवाओ, डिश बदलवाओ, गरम लेकर आओ, गरम लेकर आओ। जालिम, इसकी घरवाली 4 बजे बना के रख देती है, रात के 9 बजे खाने बैठता है तो ठंडा रख देती है, और अगर
कुछ कहता है कि जरा जबान को बंद करके रखना, दो बातें घरवाली के सामने नहीं बोलता, लेकिन उसके यहाँ पर जाने के बाद जिसकी बेटी की बारात आने तैयार है, जिसकी इज्जत दांव पे लगी हुई है, वहां डोंगा बदलवाओ। याद करना, जब कयामत में जाएगा कहीं तुझे ही ना बदल दिया जाए, कहीं तेरा रास्ता जहन्नम की तरफ न बांध दिया जाए। तवज्जो करना, जरा तवज्जो करना। हजरत फातिमा कहती है कलमा पढ़ो और मुसलमान हो जाओ। मेरे प्यारे, मौरिख बयान करता है हजरत फातिमा का ये कहना था, वहां मौजूद जितनी खवातीन थी, जितनी औरतें थी, सबकी सबने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। हजरत फातिमा के किरदार से, आपके अखलाक से दीन फैलता हुआ नजर आया, मजहब इस्लाम फैलता हुआ नजर आया। मेरे प्यारे तवज्जो तो करना। बस आखिरी बात अर्ज करता हूं और मेरे प्यारे, मैं अपनी बात को बहुत जल्दी समेटता हूं। मेरे प्यारे तवज्जो करना, आज आपके प्यारे दामाद हजरत उस्मान गनी है, जिनका बयान आपने सुना। मेरे प्यारे हजरत उस्मान गनी ने आका करीम की दावत की है। अब हजरत उस्मान गनी ने जब आका की दावत की और तमाम सहाबा किराम की भी दावत की, तो मेरे प्यारे सारे सहाबा को लेके हुजूर जो है हजरत उस्मान गनी के घर की तरफ चले, तो हजरत उस्मान गनी पीछे 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 चल रहे हैं और आका के कदमों को गिनते चले जा रहे हैं। आका करीम ने पूछा, उस्मान क्या कर रहे हो कदम गिन के, क्यों कदम गिन रहे हो? हजरत उस्मान अर्ज करते हैं, आका मैंने आपके हर कदम के बदले एक गुलाम को आजाद कर दिया है, एक गुलाम को आजाद कर दिया है। बड़ी अच्छी दावत रही। हजरत अली भी उसमें शामिल थे। हजरत अली दावत में शामिल होकर अपने घर आए और मगमून होकर बैठ गए, अफसोस में बैठ गए, अफसुर्दा होकर बैठ गए। हजरत फातिमा आती है और अर्ज करती है, अली क्या हुआ है, आज कैसे मगमून हो, आज कैसे परेशान हो? कहा, फातिमा आज हमारे भाई उस्मान गनी ने आका करीम की बड़ी अच्छी दावत की थी, बड़ा एहतमाम किया और हर कदम पर आका करीम के हजरत उस्मान ने एक गुलाम को आजाद किया है। तवज्जो करना मेरे प्यारे, तवज्जो करना मेरे प्यारे। हजरत अली से हजरत फातिमा ज़हरा कहती है, अली फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जाओ तुम भी आका करीम की बारगाह में दावत करके आओ। आका करीम की बारगाह में हजरत अली जाते हैं और जाने के बाद मेरे प्यारे अल्लाह अकबर, आका करीम की दावत करते हैं, तमाम सहाबा की दावत करते हैं। मेरे प्यारे, दावत करने के बाद आका करीम सारे सहाबा को लेके हजरत अली के घर आ जाते हैं। घर में कुछ नहीं है, न पकान, न आटा है, न चावल है, न दाल है, कुछ नहीं है। आका की दावत कर दी, सारे सहाबा आके बैठ गए हैं। हजरत अली का दिल लरज रहा है, बड़े कपकपा रहे हैं, बात सही से नहीं बन पा रही है, लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा ने आका करीम को अच्छे से बिठाया, तमाम सहाबा को बिठाया और बिठाने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा आका अल्लाह की बारगाह में सिजदा रेज हो जाती है और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मालिक मैंने तेरे नबी की दावत तो कर दी है, उनके सहाबा की दावत तो कर दी है, ए मेरे मालिक, लेकिन घर में खाने कुछ नहीं है। ए अल्लाह, तू अपने नबी के और अपने नबी के सहाबा के लिए कुछ खाने का इंतजाम फरमा दे। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा दुआ मांगती है, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल फरमाता है। क्या देखती है कि हांडी जन्नती खानों से भर चुकी है। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ने खाना खिलाना शुरू किया, आका खा रहे हैं, सहाबा किराम खा रहे हैं। आका करीम ने सहाबा से फरमाया, सहाबा जानते हो ये खाना कहाँ का है? अर्ज करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सहाबा आज जिस खाने को खा रहे हो ये जन्नती खाना है, ये जन्नती ग़िज़ा है। सहाबा किराम खुश हो जाते हैं। मेरे प्यारे, अब हजरत फातिमा खिलाकर फारिग होती है और फिर से मुसल्ला बिछाती है और मुसल्ला बिछाने के बाद अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, ए मेरे मालिक, तमाम हमदो सना तेरे लिए, तमाम तारीफें तेरे लिए, तमाम खूबियां तेरे लिए। आसमान का मालिक तू है, जमीन का मालिक तू है, चरिंदो परिंद का मालिक तू है। ए मालिक, तेरे हुक्म के बगैर एक जर्रा नहीं हिल सकता है। हजरत फातिमा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, मेरे मालिक, हजरत उस्मान के घर तेरे प्यारे हबीब गए थे तो उनकी हैसियत यह थी, उन्हें तूने माल दिया है कि वो नबी के हर कदम पर उन्होंने, आका के हर कदम पर उन्होंने एक गुलाम आजाद किया था। ए मेरे आका, तू भी, ए मेरे अल्लाह, तू हमें भी कुछ न कुछ अर्ज कर दे। अल्लाह की बारगाह में प्यारी नबी की प्यारी बेटी
दुआ कर रही हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फातिमा ज़हरा सिजदे से सर उठाती है, कुछ देर होती है, इतने में आका करीम की बारगाह में हजरत जिब्रील तशरीफ ले आते हैं और आने के बाद अर्ज करते हैं, ए अल्लाह के महबूब, आपकी बेटी की दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है और आपके हर कदम के बदले 1000 गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमा दिया है। मेरे प्यारे तवज्जो तो समझे कि हजरत फातिमा ज़हरा ने आका करीम की दावत करी है तो जन्नती खाना खिला दिया है अपनी दुआ से। और इस उम्मत के बारे में देखो तो सही कि आका करीम के कितने कदम पड़े होंगे, हर कदम के बदले 1000 गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद कर दिया गया है, उनकी खताओं को माफ कर दिया गया है। मेरे प्यारे हजरत फातिमा ज़हरा ने उम्मत का बड़ा ख्याल किया है। हजरत फातिमा ज़हरा है कि आपका आखिरी वक्त आता है। मेरे प्यारे हजरत फातिमा ज़हरा ने अपने विसाल से पहले खुद गुस्ल किया और गुस्ल करने के बाद कहा कि देखो, बुलाया हजरत अली को कि देखो मेरी वसीयत है कि दिन में मुझे दफन नहीं करना है, रात में दफन करना है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आपके जनाजे के ऊपर ढकने के लिए एक कजावा तैयार किया जो ऊपर से गहवारा होता है, जो आज भी औरतों के ऊपर डलता है। ये सबसे पहले हजरत फातिमा ज़हरा के ऊपर पड़ा है। मेरे प्यारे 3 रमजानुल मुबारक मंगल के दिन हजरत फातिमा ज़हरा का विसाल हो जाता है। ये 2 रिवायतें मिलती हैं, एक तो ये कि हजरत अली ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और दूसरी रिवायत ये मिलती है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई। मेरे प्यारे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने आपकी वसीयत के मुताबिक आपको जन्नतुल बकी में दफन कर दिया। और मेरे प्यारे ये नबी की लख्ते जिगर तुम सबको ऐलान कर गई और तुम सबको बता गई और उम्मत की तमाम खवातीन को बता गई कि तुम्हारी जिंदगी किसी काम की नहीं है अगर अल्लाह और उसके रसूल के मकसद के मुताबिक ना गुजरे। क्या बात रजा उस चमनस्ताने करम की, ज़हरा है कली, हसन और हुसैन फूल, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का।